میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ دوسرے کو تکلیف سے نکالنا، دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالنا، یہ راز ہے ترقی کا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ آپ کو 100% ترقی دے۔ ساری دنیا سو رہی ہے، آپ جاگ رہے ہیں، آپ سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر کی ساری مشکل کو اللہ دور کرے، مصیبت کو دور کرے اور آپ کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے۔ آمین بولیے، قبولیت کی گھڑی آ چکی ہے۔ دھیان سے سنیے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آدھا جلسہ نکال چکا ہوں، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے۔ ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دوسرے کو تکلیف میں رکھنا نہیں ہے، تکلیف سے نکالنا۔ راز سنیے جو سنا رہا ہوں۔ آدمی نفل نماز پڑھتا ہے، دوسرا آدمی دوسرے کو تکلیف سے نکال رہا ہے، کس کا درجہ افضل ہے؟ تو لکھا ہے کہ نفل نماز پڑھنے والے سے زیادہ افضل وہ آدمی ہے جو دوسرے کی تکلیف کو دور کر رہا ہے۔ ایک آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہوا، دوسرا ڈاکٹر ہے جو کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے گیا، ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ اس ڈاکٹر کو ملے گا، وہ انسان کو تکلیف سے نکال رہا ہے اور یہ خدا کے سامنے کھڑا ہے، درجہ اس کا بڑا ہے، اس سے زیادہ فضیلت اس کو مل رہی ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، ہاتھ میں زخم ہے، بدبو پھیل رہی ہے، اس خیال سے مسجد نہیں جا رہا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس کی نماز گھر میں افضل ہے یا مسجد میں افضل ہے؟ تو لکھا ہے کہ مسجد سے زیادہ گھر میں نماز پڑھنے پر اس کو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ وہ دوسرے کو تکلیف سے نکال رہا ہے، تکلیف میں ڈال نہیں رہا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، رات کا سناٹا ہے، ایک آدمی زور سے قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی آہستہ سے قرآن پڑھ رہا ہے، کس کا درجہ بڑا ہے؟ تو لکھا ہے کہ سونے والے اگر سو رہے ہیں تو جو زور سے قرآن پڑھ رہا ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا، جو آہستہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کو ثواب ملے گا، چونکہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کی نیند میں خلل آ رہا ہے، اس لیے اس کو ثواب نہیں ملا، اور یہ آہستہ پڑھا، دوسرے کی نیند میں خلل نہیں آیا، اس لیے اس کو زیادہ ثواب ملا۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کو تکلیف سے نکالے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جانور کون ہوتا ہے؟ جو انسان کو نفع پہنچاتا ہے۔ جانور کون ہوتا ہے؟ جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جانور کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کو نفع نہیں پہنچاتا، نقصان نہیں پہنچاتا۔ جنگلی جانور ہے، وحشی جانور ہے، وہ نفع بھی نہیں پہنچاتا، نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے، ورنہ آپ انسان نہیں رہیں گے، جانور ہو جائیں گے۔ کیسے؟ اگر دوسرے کو بھلا نہیں کر سکتے تو دوسرے کا برا نہیں کر سکتے۔ دوسرے کا اگر بھلا نہیں کر سکتے تو دوسرے کا برا مت کیجیے گا، ورنہ آپ انسان نہیں رہیں گے۔ دوسرے کو کا سکھ نہیں دیکھ سکتے تو دوسرے کو دکھ میں نہیں ڈال سکتے۔ اگر آپ دوسرے کا سکھ دیکھ رہے ہیں، دوسرے کو دکھ میں ڈال رہے ہیں تو آپ انسان نہیں ہے، جانور ہیں۔ آپ اگر دوسرے کی تعریف نہیں کر سکتے تو دوسرے کی توہین نہیں کرنا ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہم انسان ہیں، دوسرے کو تکلیف سے نکالیں گے۔ تکلیف سے کیسے نکالتا ہے؟ 5 راستے ہیں، لائن بلائن سنا رہا ہوں، جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہوں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ کمپرمائز نہیں کریں گے، مقدمہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ معاف نہیں کریں گے، بدلہ لیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ 2-4 بار اگر اسی طرح ہاتھ اٹھاتے رہے تو جنازہ ہی پڑھ کر کے جائیں گے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے کہ دوسرے کی جان کی حفاظت کیجیے۔ دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے دوسرے کی مال کی حفاظت کیجیے۔ دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے اس سے نفرت مت کیجیے، محبت کیجیے۔ دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے غلطی ہو جائے معاف کر دیجیے۔ دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کیجیے۔
जफा के हो पैकर वफा क्या करोगे, जफा के हो पैकर वफा क्या करोगे, मोहब्बत का हक तुम अदा क्या करोगे, मोहब्बत का हक तुम अदा क्या करोगे। तुम्हें तो है मतलब, तुम्हें तो है अपनी भलाई से मतलब, भला तुम किसी का भला क्या करोगे। किया करते हो तुम तो नफरत की बातें, मोहब्बत का तुम तज़किरा क्या करोगे। मैं रहता हूँ अख्तर हवा की ज़द पर, मुझे शाख से तुम जुदा क्या करोगे। जलसा निकल गया, 10 से 15 मिनट का आपका जलसा है, आप दिल से सुन लेंगे तो वो भी निकल जाएगा। इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, रिश्तेदार के साथ रिश्तेदारी रखिए तो खुदा भी आपसे रिश्ता रखेगा। रिश्तेदार के साथ अगर आप रिश्तेदारी नहीं रखेंगे तो खुदा भी रिश्ता नहीं रखेगा। सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आखिरी मुताला देता हूँ और माँ बहन को 2 पैगाम देकर के जलसे को मुकम्मल कर दूंगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दीन की दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। जवान बेटे को खूब तरक्की दे, छोटे बच्चे को इल्म हुनर से माला माल करे। आपके घर में जवान बेटी है, गैब से मुनासिब जोड़े का अल्लाह इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। पैगंबर ने कहा कि तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं, माँ बाप एक हैं, तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं। पैगंबर ने कहा कि तुम्हारा दीन एक है, तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारे पैगंबर एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो, सारे मुसलमान भाई भाई हो। भाई होने का क्या मतलब हुआ? तुम जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करना, अपने लिए तुम्हें नफ़ा पसंद है, तुम दूसरे मुसलमान के लिए नफ़ा पसंद करना। तुम्हें अपना नुकसान पसंद नहीं है, दूसरे मुसलमान का नुकसान मत करना। दूसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं। एक जवान आगे चल रहा है, पीछे बूढ़ा है। जवान आगे चल रहा है, पीछे बूढ़ा है। अल्लाह के रसूल ने रोका, ए जवान ये कौन है? तो कहा ये मेरे वालिद हैं। कहा तुम्हारे वालिद हैं, इनसे आगे मत चलना। तुम्हारे वालिद हैं, इनसे पहले मत बैठना। तुम्हारे वालिद हैं, इनका नाम लेकर के इनको मत पुकारना। जवान दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि हाँ। का मसला हल हो गया। जवान के कान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, बहुत भारी गुनाह हुआ है और मेरी माँ जिंदा है, आप कहते मसला हल है। कहा तुम्हारी माँ जिंदा है, मसला हल हो गया, माँ से दुआ करा लो, बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा गुनाह माफ हो जाएगा। तीसरी बात को याद रखिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। शौहर से कहा कि बीवी की इज्जत करो, तुमसे ज्यादा कुर्बानी दिया है। कहा या रसूल अल्लाह कमाते हम हैं, कमा करके ला करके इनको हम देते हैं, ये तो रानी बन करके दिन काट रही है, हमारे घर में कुर्बानी तो हमको देनी पड़ रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि औरत की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। कहा कि या रसूल अल्लाह वो कैसे? अगर तुमसे कहा जाता कि तुम्हारा निकाह होने वाला है, घर को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, वतन को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम निकाह नहीं करते, कुंवारे ही रहते, वतन को नहीं छोड़ते, माँ बाप को नहीं छोड़ते, कुर्बान जाओ इस औरत के ऊपर। इसने निकाह पढ़ा, अपने घर को भी छोड़ा, माँ बाप को भी छोड़ा, वतन को छोड़ा और तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो गई, तुम्हारे घर को अपना घर बना लिया। उसकी कुर्बानी तुम्हारी कुर्बानी से ज्यादा है। औरत से कहा कि तुम्हारे लिए जो शौहर हैं ये जन्नत है, तुम्हारे लिए ही शौहर जहन्नम है। इनकी नाफरमानी करोगे सीधे जहन्नम में जाओगी, इसकी इताअत करोगी सीधे जन्नत में जाओगी। तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जहन्नम है। उस्ताद के लिए कहा कि उस्ताद की इज्जत करना, उसने तुम्हें एक आयत अगर सिखा दिया तो तुम उसके गुलाम हो। अब मैं आपको राज बता रहा हूं, बात मर्द के ऊपर किसकी बात का असर होता है, मर्द के ऊपर मर्द की बात का असर कम होता है। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, मेरा भी दावा नहीं कि मेरी बात का आपके ऊपर ज्यादा असर होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 4 औरत का असर मर्द के ऊपर ज्यादा होता है। मां का असर बेटे के ऊपर ज्यादा होता है, बहन का असर भाई के ऊपर ज्यादा होता है, बेटी का असर बाप के ऊपर ज्यादा होता है और बीवी का असर शौहर के ऊपर ज्यादा होता है। मां मुसलमान नहीं है, बाप मुसलमान है, बीच में बच्चा है, मां कह रही है बेटा तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, बाप कह रहा है कि बेटा कलमा पढ़कर के मुसलमान मत होना, जैसे मैं मुसलमान नहीं हूं तुम भी उसी तरह रहो। मां ने एक बार कहा, बाप ने एक बार कहा, मां ने दूसरी बार कहा, बाप ने दूसरी बार कहा, मां ने तीसरी बार कहा,
बाप ने तीसरी बार कहा, माँ का जादू चल गया, बेटा कभी इधर देखता कभी उधर देखता है, माँ को देख करके कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जवान ने पैगाम दिया है, औरत को पैगाम दिया है। औरत ने एक शर्त पर कबूल किया है कि मेरा महर देना पड़ेगा। कहा कि हाँ महर दे देंगे। कहा मेरा महर ये होगा कि हम मुसलमान हैं, तुम मुसलमान नहीं हो, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। बीवी की बात का शौहर ज्यादा असर लेता है। बीवी अगर नेक हो तो शौहर को नेक बना देती है। बीवी अगर नेक हो, शौहर अगर शैतान हो तो बीवी शैतान को वली बना दिया करती है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। बेटी को तकलीफ है, उंगली में नींद नहीं आ रही है, बाप परेशान। पूछा कि बेटी क्या हुआ? कहा हाथ में तकलीफ है, पूरा बदन अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है। बाप के दिल को चोट लगी। कैसी साबिरा लड़की है, कैसी शाकिरा लड़की है, बोलने का सलीका कितना प्यारा है, कितना अच्छा सलीका है। कह रही हाथ में तकलीफ है, पूरा जिस्म सही सालिम है। तो कहा कि अब्बा हुजूर आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? कहा कि तू मेरी बेटी है, मेरा लख्ते जिगर है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, तेरी मोहब्बत की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। तो बेटी कहती है अब्बा हुजूर एक दिल में एक ही की मोहब्बत होती है, या तो अल्लाह की मोहब्बत होती है या तो गैरुल्लाह की मोहब्बत होती है। बेटी के इस जुमले का असर, बाप जो गलत रास्ते पर था सीधे रास्ते पर आ गया, जो गलत रास्ते पर था अल्लाह का वली बन गया। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं। बीवी का इंतकाल हो गया है, भाई का इरादा बदल गया, निकाह नहीं करूंगा, अब निकाह मुझे करना ही नहीं है। इरादा बदल गया कि अब मुझे निकाह नहीं करना है, भाई का इरादा बदल गया है। भाई का इरादा बदल गया। बहन आई, कहा तुम जवान आदमी हो, दूसरा निकाह कर लो। अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ, तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ, तुम दूसरा निकाह कर लो। तो भाई कहता कि नहीं निकाह नहीं करूंगा। कहा निकाह करो, मैं बताती हूं निकाह का राज क्या है। अगर तुम्हें औलाद होगी, वो औलाद नेक होगी, एक एक सांस के ऊपर तुम्हें एक एक सदके का सवाब मिलेगा। बहन की बात का असर हुआ, भाई ने निकाह कर लिया। अगर 4 औरत नेक हो तो घर के सारे मर्दों को नेक बना सकती है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इंशाअल्लाह बहन पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए, रुखसत करेंगे और सब कुछ लिखा लेंगे। हाथ उठाइए। बेटी को रुखसत करेंगे, बेटा को सब कुछ लिख देंगे। हाथ उठाइए। खैर अब समझ में आया। अरे माशाअल्लाह 20 ब्रेक मारे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटी को बहन को हक से महरूम मत कीजिएगा, वरना अल्लाह अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, बहन कितनी बड़ी दौलत है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं और औरतों के हिस्से के जलसे को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। 2 पैगाम दूंगा, जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है। औरत आई रोती हुई, उसने कहा कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है। एक मेरा बेटा, एक मेरा बाप है, एक मेरा शौहर है। एक मेरा बेटा है, एक मेरा शौहर है, एक मेरा भाई है। 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, तीनों को छोड़ दो। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम्हारी फरियाद से एक को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा। अब तुम्हें इख्तियार है, जिसको बचाना चाहो बचा लो, जिसको मौत के हवाले करना चाहो कर दो। तो औरत का कितना सख्त इम्तिहान होगा, अब खुद सोच सकते हैं कि उस औरत का कितना सख्त इम्तिहान होगा कि वो किसको बचाए। एक तरफ भाई गिरफ्तार है, एक तरफ बेटा गिरफ्तार है, एक तरफ शौहर गिरफ्तार है। औरत ने सोच करके फैसला लिया, कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो। शौहर को फांसी हो गई, बेटे को फांसी हो गई। हज्जाज यूसुफ ने फांसी देने के बाद पूछा, ए औरत तूने भाई को बचाया, बेटे को नहीं बचाया। ए औरत तूने भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए और आइंदा आप अपने इरादे को बदलिए कि बहन के साथ हमारा सौतेला सलूक नहीं होगा। एक खून से हम पैदा हुए हैं, एक माँ बाप की औलाद है, उस रिश्ते को हम बाकी रखेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। उस औरत ने कहा कि मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझे शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ तो मुझे बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। भाई का भाई
رہے گا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پہ سر نے چھوڑا پیدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔